Hello everyone. Today we are again continue tangents and normals. In first lecture we already discussed what is the slope of tangent, slope of normal, how we should write the equation of tangent, equation of normal. And now in today's class we are going to discuss how we should find the angle of intersection of two curves. Okay. Angle of intersection of two curves. Suppose we have curve this one as this one we take as C1 curve. Suppose this curve is your C1 curve and there is another curve, this one as C2. They are intersecting a point P. This point is we consider P. For finding the angle between two curves, we need to take tangents at this point to both the curves. Suppose this line is tangent T1 for first curve and it makes an angle phi 1 with the x-axis, positive x-axis, and another tangent we take at the same common point for the curve C2, this one we consider it as tangent T2 for the curve C2 and it makes an angle, we take always angle with a positive direction of x-axis, so here we should take angle as phi 2. ठीक है? Now we need to find the angle between the curves. The angle between curves is the angle between their tangents. Let it is theta. तो दो एंगल के बीच, दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमें उनके कॉमन पॉइंट पे दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल between angle of intersection of two curves at point P is equal to angle of intersection of two tangents at point P. मीन्स किसी कर्व के बीच का एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, हम उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो कर्व के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना होगा. तो अब इस फिगर में हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, हमने दो कर्व्स लिया है C1 C2. C1 पे टेंजेंट हमने T1 खींचा है, दैट मेक्स एंगल phi 1 विद द पॉजिटिव x एक्सिस एंड सेकेंड कर्व इज C2 मेकिंग एन एंगल phi 2 विद द पॉजिटिव x एक्सिस. Now from figure we can write theta plus phi 1 is equals to phi 2. Since this angle is exterior angle of a triangle is always equals to sum of interior angles. तो हमने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से phi 2 को phi 1 प्लस थीटा के इक्वल लिखा है.
तो देयरफॉर व्हाट शुड बी थीटा? थीटा बिकम्स phi 2 माइनस phi 1. ठीक है. If we take the tan on both sides, this implies tan theta is equals to tan phi 2 minus phi 1. So now if you use tan A minus B, we should get tan phi 2 minus tan phi 1 upon 1 plus tan phi 2 into tan phi 1. ठीक है. Since tan phi 1 is your slope and we can write slope with the help of calculus, or we can write with the help of derivative, that is your dy by dx for फर्स्ट कर्व. फर्स्ट कर्व के लिए ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, अगर फाई एंगल 1 बनाती है, जिसका स्लोप tan phi 1 हो रहा था, हमने इसको dy by dx फॉर फर्स्ट कर्व लिख दिया. ठीक है. ऐसे ही एट P क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही tan phi 2 जो होगा, that we take it as m2 and we write it as dy by dx c2 second curve at point P. ठीक है. तो अब हम इस tan phi 2 tan phi 1 के प्लेस पे dy by dx सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. तो hence we get, this implies tan theta is equals to dy by dx सबसे पहले हमने tan phi 2 लिखा है, मीन्स dy by dx एट c2 लिखेंगे, माइनस dy by dx एट c1 लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस dy by dx c2 इंटू dy by dx c1 लिखेंगे. ठीक है. तो थीटा क्या हो जाएगा? दैट शुड बी द tan इनवर्स, एंड एंगल बिटवीन कर्व्स वी ऑलवेज टेक द एक्यूट एंगल. जब भी दो लाइन के बीच का एंगल बात करेंगे, हमने बताया था आपको पहले भी कि दो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूस बनता है. जब तक ऑब्ट्यूस नहीं कहा गया है, we should always consider it as acute angle. So therefore whenever we are writing the angle between curves, we should take acute angle. For that now we are going to take modulus sign, and here we write dy by dx for second curve minus dy by dx for first curve upon 1 plus dy by dx for सेकेंड इंटू dy by dx फॉर फर्स्ट. ठीक. तो इस टाइप से हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिमिलर है जो आपने पहले फार्मूला पढ़ रखा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस ही यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट बिकम्स इटसेल्फ इज अ लाइन. टेंजेंट T1 and T2 are the lines, so we are finding the angle between two lines. So angle between two tangents is exactly equal to the angle between two lines, and in this way we get this result. That is your result for finding the angle between two curves at a common intersection point P. Intersection point सबसे पहले हमें कर्व्स का फाइंड करना होगा. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फर्स्ट वाले कर्व का टेंजेंट निकालेंगे, फिर सेकेंड वाले कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे. ठीक है. फिर उनको लाके इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आप इस तरीके से कहीं भी एंगल फाइंड आउट करना होगा तो इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब इस एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम
ऑर्थोगोनलिटी बोलते हैं, या दो कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं या उनको हम ऑर्थोगोनल कर्व्स कब कहेंगे, वो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑर्थोगोनल कर्व्स, किन कर्व्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे? कर्व्स intersecting at right angle or curves intersecting at right angle are called orthogonal curves. That is, if theta equals to pi by 2, then curves are orthogonal. Then curves are orthogonal. Then curves are orthogonal curves. Means अभी जो रिजल्ट हमने यूज किया था उसमें इफ दिस इंप्लाइज इफ dy by dx of first curve into dy by dx of second curve at point P इसलिए हम हमेशा पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। -1 है, जैसे सपोज करो एक कर्व हमने ये लिया था और एक दूसरा कर्व हमने ये लिया है इस तरीके से, और इनके बीच में अगर एंगल ये वाला एंगल अगर 90 हो रहा है तो हम इनको ऑर्थोगोनल कर्व्स कह सकते हैं। और ये जब होगा ये सेटिस्फाई श्योर होगा। मीन्स इफ द, जैसे आपने लाइंस में पढ़ा था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है लाइंस के केस में। ऐसे ही ऑर्थोगोनल कर्व्स हम कब कहेंगे, जब दोनों कर्व के बीच में एंगल 90 हो। तो उसके लिए हम अभी डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो जहां हम स्लोप m1 m2 लिखते थे वहां पे हम dy by dx फर्स्ट कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P एंड dy by dx फॉर सेकेंड कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इज इक्वल्स टू -1 है। तो देन वी से द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स आर दे कट ऑर्थोगोनली। ओके, ठीक है। नाउ वी टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स टू इलिस्ट्रेट this article. Question is, find the angle of intersection of the curves xy equals to 6 and x square y equals to 12. हमें दो कर्व्स गिवन हैं, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है जहां पे कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। सॉल्यूशन, xy equals to 6, let us consider it this one is the first curve, so we should just write it as C1 for our understanding and give the name as equation 1, and second curve is x square y equals to 12, this is your C2 curve and take it as equation 2। ठीक है, दोनों कर्व का हम रफ डायग्राम एक बना लेते हैं। Suppose this one is the first curve and this is your second curve. This one is C1 and this curve is C2. This point is common point, that is point of intersection. Point of intersection पे हम दोनों के कर्व्स के टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे और इनके बीच का एंगल थीटा लिखेंगे, जैसे अभी हमने आर्टिकल में किया था कि हम दोनों कर्व्स का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy by dx के हेल्प से। ठीक है, और dy by dx दोनों कर्व का निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वैल्यू देखेंगे, दोनों कर्व्स की स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर उसको हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। तो फर्स्टली वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकाला जाता है? दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व किया जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी मेक y इक्वल्स टू 6/x। हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू 6/x बना ली। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 6/x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में अगर आप रख देते हो तो क्या वैल्यू आएगी? x स्क्वायर तो था ही अपना, और ये 6/x y के प्लेस पे, और राइट साइड इज 12। सो व्हेन यू सॉल्व यू कैन इजिली गेट x इक्वल्स टू 2। इफ x is 2, this implies y should be how much? That is 6/2, 6/2 that is 3. Hence point P is 2,3। ये जो पॉइंट P था ये आपकी वैल्यू 2, 3 आ रही है। अब इस कॉमन पॉइंट पे हम दोनों के स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सबसे पहले हम 1 को कर रहे हैं, तो 1 को करेंगे तो 1 इंटू dy/dx प्लस x। हम यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना आप। तो सबसे पहले हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 हो गया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू वाई प्लस x dy/dx is equals to 0. So this implies dy/dx we are getting minus y/x. Therefore dy/dx of first curve at P पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना है, इसलिए ये तो जनरल वैल्यू आई। ये पॉइंट P पे क्या वैल्यू आएगी वो देखेंगे हम। तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं 2, 3 पे, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो -3/2 वी गेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व एट पॉइंट P. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड। अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यहां पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। x² y है तो फर्स्ट बिकम्स 2x y, x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई प्लस x² dy/dx इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी सिंप्लीफाई इट. When we simplify, what we will get? dy/dx we get minus 2xy divided by x². So when we cancel out, we get minus 2y/x. ठीक है, minus 2y/x. Now dy/dx for second curve at P पॉइंट पे बात करेंगे तो -2 इंटू 3/2. सो दिस विल बी कैंसिल आउट, दैट गिव्स यू -3. दैट इज द स्लोप फॉर सेकेंड कर्व. नाउ एंगल ऑफ intersection of curves theta is your tan inverse dy/dx C2 curve minus dy/dx C1 upon 1 plus
dy by dx c2 इंटू dy by dx c1। इनकी वैल्यूज जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट व्हाट वी विल गेट, जस्ट सी दिस वैल्यू वी आर गेटिंग -3 एंड हियर फर्स्ट वी आर गेटिंग -3/2 and in denominator we should get -3 into -3/2 like that। ठीक है, now we should simplify it। when we simplify what we are getting, just see this is your -3 plus 3/2 whole upon 1 plus 9/2। so when we solve we get it as tan inverse minus tan inverse minus 3/11, tan inverse minus 3/11 we are getting। what here we have modulus sign, तो modulus sign है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, that gives you theta equals to tan inverse 3/11। this is angle between two curves। always we write positive sign, since whenever we are finding the angle between two curves we should take acute angle between the tangents, acute angle between curves or acute angle between tangents। ऑब्ट्यूस अगर किसी क्वेश्चन में कहा है तो देन वी शुड राइट 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, आपको पहले भी बताया मैंने कि एक एंगल इधर होगा, सपोज वी आर टेकिंग हियर थीटा, दिस एज थीटा, देन दिस एंगल शुड बी 180 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल्स होते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, दिस गिव्स यू acute angle, then this will give you obtuse angle। ठीक है, तो इसलिए हम मॉडुलस साइन यूज करते हैं कि कहीं निगेटिव साइन आएगा तो भी हम इसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे, क्योंकि जब तक कहा नहीं गया है तब तक हम acute एंगल कंसीडर करके हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वी टेक सम मोर क्वेश्चंस टू इलस्ट्रेट दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शो दैट the curves x equals to y square and xy equals to k cut at right angle if 8k square equals to 1। मीन्स ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पे तभी कट करेंगे जब ऐसा हो रहा होगा, 8k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही होगी। तो हम अभी जो एंगल बिटवीन कर्व्स पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो जस्ट यू टेक केयर हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो फर्स्ट कर्व वी हैव x इक्वल्स टू y स्क्वायर, दिस इज योर फर्स्ट कर्व एंड वी कंसिडर इट एज इक्वेशन 1, एंड सेकेंड कर्व इज xy इक्वल्स टू k, this is your second curve and this we consider as equation 2। now as we need to find the angle, so first of all we need to find the point of intersection। हमें सबसे पहले point of intersection find करना होगा कि दोनों कर्व कहाँ पे कट कर रहे हैं। उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व का स्लोप निकालेंगे और स्लोप को फिर हम फार्मूले में रख के हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस एंगल में एक कंडीशन यहाँ पे है, राइट एंगल पे कट कर रहा है, मीन्स ये कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो ये कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हम फर्स्ट से वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट फाइंड करना है। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट गिव्स यू y स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू k
So this implies y cube equals to k. So we can write it as y equals to here power 3. So it becomes k power 1 by 3. अगर हम यहाँ से पावर हटाएंगे तो राइट साइड में पावर 1/3 हो जाएगी. This implies what should be the x? If y is this, so from equation first we can write it as whole power 2 from इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें x y दोनों चाहिए. सो वी गेट x इक्वल्स टू k पावर 2 by 3. Hence point of intersection is hence point of intersection of curves is k power 2 by 3 and k power 1 by 3. This is your point of intersection. Now we need to find the slope of two curves at this point. So for that we need to differentiating इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में 1 आ जाएगा और राइट साइड वी गेट 2y dy by dx. So this implies what we are getting dy by dx. dy by dx is 1/2y. Hence dy by dx for first curve at point of intersection we consider it is as p is 1/2 y की वैल्यू k पावर 1 by 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट कर्व का स्लोप हो जाएगा, फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा. ठीक है. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. यहां पे x y इक्वल्स टू k है. सो वी शुड यूज एज ए प्रोडक्ट रूल. सो x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1. हम 1 by 1 दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज योर माइनस y बाई एक्स. This implies dy by dx for second curve at p point. p point वैल्यू क्या आएगी? माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी? k पावर 1 by 3 and x is your k power 2 by 3. This is your dy by dx of second curve at point of intersection. तो इन दोनों का रिजल्ट का अब यूज होने जा रहा है. सपोज इट इज रिजल्ट थर्ड and this result is 4. These two curves cut at right angle. Curves cut at right angle. Curves cut at right angle if curves cut at right angle if and only if m1 into m2 equals to -1. ये हमने पढ़ा है कि अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है दैट इज dy by dx of first curve into dy by dx of second curve at point p means product of slope should be -1. ये कंडीशन है कि दो कर्व्स अगर राइट एंगल पे कट करते हैं तो ये जरूर हो रहा होगा. तो अभी क्वेश्चन में कहा गया है कट एट राइट एंगल, तो हम ये आइडेंटिटी को यूज करेंगे. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड स्लोप. फर्स्ट स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी उसको रखते हैं. सो वी हैव 1/2 k पावर 1 by 3 इंटू सेकेंड इज माइनस टाइम k 1 by 3 अपॉन k 2 by 3 पावर इक्वल्स टू -1. तो ये k की पावर 1 by 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. आप देख सकते हैं इसी को हम इधर थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं. आप देखना थोड़ा स्पेस की कमी है. ठीक है.
तो अभी जो फाइनल बच रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। एक माइनस साइन इधर भी है, माइनस साइन इधर भी है, तो माइनस हम रिमूव कर सकते हैं। माइनस रिमूव कर देंगे तो वैल्यू अपनी क्या बच रही, 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू बच रही है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू 2k पावर 2/3। अभी हमें जो प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो हमारा ये राइट साइड वैल्यू जो आ रही है k की पावर 2/3 आ रही है, मीन्स ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने से हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम इस इक्वेशन की क्यूबिंग करेंगे तो इधर हम 1 क्यूब लिख देंगे और इधर की तरफ आप 2 टाइम्स k की पावर 2/3 था, इधर भी हम क्यूब कर दे रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए। तो लेफ्ट वी गेट 1 एंड राइट साइड वी गेट 8k स्क्वायर, मीन्स दिस इज योर फाइनल रिजल्ट व्हाट वी हैव टू शो। मीन्स इफ कर्व्स कट एट राइट एंगल देन दिस कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है, तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नाउ वी टेक अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if the curves x square upon a square plus y square upon 4 equals to 1 and y cube equals to 16x cut orthogonally। अगर ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उस समय a की वैल्यूज क्या होंगी ये फाइंड करना है। कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। मीन्स dy by dx ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू dy by dx ऑफ सेकेंड कर्व इक्वल्स टू -1। तो अभी हमें दोनों कर्व्स के सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ हम इजीली नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है a। ठीक है, तो हम दोनों कर्व्स का पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं इन जनरल, फिर उसको ले जाके ऑर्थोगोनल वाले कंडीशन में रख के सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्लोप्स क्या आएंगे। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। दिस कंसीडर एज C1 कर्व and we take it as equation 1 and second curve is y cube equals to 16x, this consider as C2 curve and it is your equation 2. So differentiating equation 1 with respect to x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ध्यान से देखिए आप, 2x आएगा, नीचे a स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसे लगा रहेगा। y स्क्वायर बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2y बाई 4 और इसके साथ dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सो व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट सी दिस गिव्स यू dy बाई dx इज इक्वल्स टू -2x अपॉन a स्क्वायर होल अपॉन 2y अपॉन 4। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल कर देंगे और ये वैल्यू फिर से देखेंगे क्या सिंप्लीफाई होके आ रहा है, 4x अपॉन a स्क्वायर y, दिस वी कंसीडर इट एज इक्वेशन 3। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड with respect to x, so it gives you 3y square dy by dx, 3y square dy by dx is equals to 16. So when we write it as dy by dx, so it becomes dy by dx, ये dy by dx आपका फर्स्ट कर्व के लिए इसलिए सफिक्स हम C1 लगा दे रहे हैं और यह सेकेंड कर्व के लिए इसलिए C2 लगा देते हैं, इक्वल्स टू 16 अपॉन 3y स्क्वायर, दिस वी कंसिडर एज इक्वेशन 4। हमने दोनों
इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके दोनों के स्लोप इन जनरल निकाल लिया है, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड किया है, इसलिए ये जनरल कर्व के स्लोप आ रहे हैं। अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे कि दे कट ऑर्थोगोनली। आप लिख सकते हो सिंस कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, therefore dy by dx of first curve into dy by dx of second curve is equals to -1। दोनों कर्व के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। फर्स्ट कर्व वी हैव दिस वन -4x upon a square y into second we have 16 upon 3y square is equals to -1। this minus should be cancelled out, so we have 64x upon 3a cube y cube is equals to 1। now what we need to find out? We need to find out a. So from this expression we should try to remove x and y cube. How we should remove? With the help of these two equations. So if we substitute y cube equals to 16x, then this will eliminate. So from equation second, putting y cube equals to 16x, so it gives you 64x upon 3a square into 16, it is 16x, so just see this should be cancelled out, so we are getting here 4 and right side is 1, so we able to solve it, and this gives you 4 upon 3a square is equals to 1, so a square becomes 4 by 3, so a is your plus minus 2 upon root 3, that is your value of a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कर्व्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे थे, इसलिए ये कंडीशन हम यूज कर लेंगे रिजल्ट के तौर पे। इसमें दोनों कर्व्स के स्लोप को निकाल के मल्टीप्लाई करके -1 की इक्वल करना है। और इसमें अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेगा तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल चल रहा है, तो इसलिए हमें उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में ये दोनों पॉइंट्स कट जाते हैं, इसलिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y square equals to x cube where normal to the curve makes equal intercept with the axis। मीन्स ये कर्व का नॉर्मल जो है ओ इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस पे काट रहा है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल और कर्व का क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आप, सबसे पहले हम कर्व को लिख रहे हैं 9y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग इट we get 18 y dy by dx is equals to 3x square, so it gives you dy by dx equals to 3 6 18, so it gives you x square upon 6y। तो अभी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करना है, तो लेट पॉइंट बी x1 y1, इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। कहां पे फाइंड करना है? जहां पे कर्व का नॉर्मल एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। जैसे आप एक रफ डायग्राम देख सकते हैं, सपोज वी हैव अ कर्व, ये आपका कर्व ले लेता हूं मैं, इसी पे इस पॉइंट पे कहीं पे टेंजेंट जा रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है, हमें नॉर्मल
ये ध्यान देना है, ये नॉर्मल है आपका, दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस पॉइंट वी कंसीडर एज P. दिस नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस. ठीक है, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई पे ये काट रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है. तो उस समय इस पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें इस पॉइंट पे स्लोप देखना होगा. स्लोप किसका देखना होगा? नॉर्मल का, क्योंकि नॉर्मल इंटरसेप्ट काट रहा है, टेंजेंट नहीं काट रहा है. कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, टेंजेंट के स्लोप को लेके चलते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट. तो हमें नॉर्मल के स्लोप को फाइंड आउट करना होगा. तो नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखा जाता था? ये आपका dy/dx स्लोप होता है टेंजेंट का. तो नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखते थे? -1/dy/dx लिखते थे. इसलिए हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1 is, what should be the slope of normal at point x1 y1 is -1/dy/dx at this point x1 y1. ये होता है नॉर्मल का स्लोप. ठीक है, तो अभी हम इस पे वैल्यू डाल देते हैं. जो वैल्यू अभी आपने निकाला है, ये वैल्यू आपकी आ रही है x² अपॉन 6y और हमें क्या है x1 y1 पॉइंट पे देखना है, इसलिए हम 6x1² और ये 6y1 मीन्स हम जो dy/dx निकाले हैं ये इन जनरल है, लेकिन जब हम x1 y1 पॉइंट पे dy/dx लिखेंगे तो ये वैल्यू हमें x1 y1 स्लोप में रख देने होगा. इस वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो दिस गिव्स यू -6y1 अपॉन x1². दिस वी कंसीडर एज इक्वेशन 1. नाउ कम टू द पॉइंट. Since normal to the curve makes equal intercept with axis, therefore m should be +-1. स्लोप +-1 होगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया था कि जब कोई इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा होगा तो उस केस में स्लोप +-1 हो जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो होगा आपका इस तरीके से, हम एंगल अगर देखते हैं तो 135 या 45 हो रहा होगा. ठीक है, तो इस केस में अभी नॉर्मल बना रहा है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप हम +-1 के इक्वल करेंगे. तो -6y1 अपॉन x1² +-1 रख देते हैं. इस माइनस को इधर रिमूव कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 6y1 अपॉन x1² -+1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6y1 -+x1². या कोई इस वैल्यू को पहले लिखना चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम x1² -+6y1. We have x1² -+6y1². So if we square it, so it becomes x1⁴ = 36y1². That is your equation 2. स्क्वायरिंग करने से ये होगा कि दोनों साइन जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे. अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट आपने लिया था जहां पे हम नॉर्मल खींच रहे हैं वो पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है और नॉर्मल उससे पास कर रहा है. सिंस अब हम यहां पे लिख रहे हैं सिंस पॉइंट x1 y1 lies on curve, therefore
इट मस्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था, ये था। अगर कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देन वी कैन राइट इट एज 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशन आ रहा है इस और ये वाले सेकंड इक्वेशन को हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इंप्लाइज y1 स्क्वायर वी हैव x1 क्यूब अपॉन 9। नाउ substitute this value in equation 2, therefore this becomes x1 power 4 equals to 36, and in place of y1 square we should write it as x1 cube upon 9. So 9 4 ja, and when we take left side common, x1 cube it gives you x1 minus 4 equals to 0. This implies x1 is either 0 or 4. x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो 0 होगा या तो आपका 4 होगा। ठीक है, when x1 is 0, this implies y1 क्या हो जाएगा, यहीं पे हम रख देते हैं, that gives you 0, and this also gives y1 equals to 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 आप रखिए यहां पे, तो 4 का क्यूब अपॉन 9 होगा। 4 का क्यूब अपॉन 9 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 0 0 लेते हो, 0 0 पेयर एक आ रहा है, तो 0 0 पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओरिजिन ले लेंगे तो इंटरसेप्ट बनेगा नहीं, इसलिए 0 0 पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो पॉइंट जो आएगा, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है 4 8/3 विथ पॉजिटिव साइन, एंड सेकेंड वन इज 4 माइनस 8/3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व वेयर नॉर्मल टू कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। दीज 2 पॉइंट्स पे नॉर्मल अगर खींचा जाएगा तो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा। इसमें एक चीज श्योर ध्यान रखना, आप 0 पॉइंट लेते हैं तो y भी 0 आएगा। 0 0 ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से कोई लाइन अगर कट करती है तो इंटरसेप्ट नहीं बनता है, इसलिए हम इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। रेस्ट पॉइंट शुड बी द 4 8/3 एंड 4 माइनस 8/3। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि टेंजेंट नॉर्मल में जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी उन सब का न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, और इसके क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमें हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कई बार ये 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 टचेज द कर्व y equals to b e की पावर minus x by a at the point where it crosses the y axis। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का अभी हमने नहीं किया था। अब इसमें एक ये कर्व आपका नॉन कर्व नहीं है, ये कर्व तो आप जानते हो x अपॉन a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है, लेकिन ये एक अलग टाइप का कर्व है। सबसे पहले हमें कर्व जो दिया गया है y इक्वल्स टू b e की पावर माइनस x/a। ठीक है, तो ये कर्व सपोज करो कोई भी कर्व है, जैसे सपोज करते हैं हम ये कर्व है ये, और ये y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, इट इज योर x एक्सिस, दिस वन इज द y एक्सिस। कर्व y इक्वल्स टू b e की पावर माइनस x/a एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां पे क्रॉस करेगा, सिंस दिस कर्व crosses y axis, so at y axis x should be the 0। ये आपने पढ़ा है कि पूरे y एक्सिस पे
हर जगह x 0 होता है। तो ये चीज़ हमें मालूम चल गई कि यहाँ श्योर x 0 होगा। तो अगर आप x को 0 रख देते हो तो व्हाट शुड बी द y, b e की पावर माइनस 0 बाई a, सो इट बिकम सिंपली 1, सो y इक्वल्स टू b। देयरफॉर पॉइंट इज 0, b। तो ये पॉइंट जहाँ पे कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b हो चुका है। अब हमें देखना है कि 0, b पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो क्या ये वाली लाइन आती है। अगर टेंजेंट 0b पे यही लाइन आ रहा होगा तो मतलब ये लाइन कर्व को टच कर रहा है, क्योंकि कर्व को टच करते हुए केवल एक ही लाइन जा रही हो सकती है, दैट शुड बी द टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते जाएगी तो श्योर हम ये इक्वेशन टेंजेंट की होगी। ठीक है, तो अब हम 0b पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। टेंजेंट का इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, दिस वी टेक इट एज 1। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट व्हाट वी विल गेट, वी गेट dy by dx इक्वल्स टू b e की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस 1 बाई ए। ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट हियर इट इज e की पावर माइनस एक्स बाई ए। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट, सो इट शुड बी e की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस 1 बाई ए। सो dy by dx नाउ वी शुड राइट इट एज एट 0b। 0b पे क्या होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, तो दैट इज योर माइनस बी बाई ए ई की पावर माइनस 0 बाई ए। सो वी गेट माइनस बी बाई ए। दैट इज योर, वी कैन से दिस इज योर इक्वेशन 2। तो कर्व का स्लोप हमें आ गया, मीन्स हमें टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है। अब हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 0, b। सो इट शुड बी द y माइनस y1 इक्वल्स टू, स्लोप लिखा जाता है माइनस b बाई ए इंटू एक्स माइनस 0। हमने टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, या m के प्लेस पे हम डेरिवेटिव से स्लोप लिख रहे हैं तो हम m के प्लेस पे dy बाई dx लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी सॉल्व इट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, y माइनस p इज इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई हम क्रॉस कर देंगे, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये bx हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ay माइनस ab इक्वल्स टू माइनस bx। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट bx प्लस ay इक्वल्स टू ab डिवाइडिंग बाई ab। So when we divide with ab, that gives you x upon a plus y by b is equals to 1. This is equation of tangent, and we know every tangent touch the curve at a point. तो ये tangent जो हो रहा है वो इस पॉइंट से टच करते हुए जाएगा। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1 टचेज द कर्व touches the curve at the point where it crosses the y-axis. Touches the curve at the point where it crosses y-axis. ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कर्व गिवन था और कर्व को पे हमने टेंजेंट निकाला जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। वाई एक्सिस को कहां, जहां पे क्रॉस करेगा वहां x 0 होगा। तो 0 रखने से सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट टेंजेंट का निकाल रहे हैं, पी पॉइंट जहाँ पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, और ये कर्व वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट निकाला, फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, और वो टेंजेंट की इक्वेशन जो है ये लाइन आई, तो शो हो जाता है कि टेंजेंट हमेशा कर्व को टच करते हुए जाता है, इसलिए ये लाइन हमेशा कर्व को टच करते हुए जाएगी। ठीक है, तो आज हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स पढ़ा। टू कर्व्स ऑर्थोगोनल कैप होंगे, कंडीशन देखा हमने, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को किया। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ना पूछ के एंगल बिटवीन कर्व्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अब आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो मैं श्योर कह सकता हूं कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं, तो प्लीज डोंट मिस दैट लेक्चर। एंड नाउ आल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.